Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous two sessions, we covered LR0 parsing. In one of the sessions, we saw the parsing table construction, and in the other session, we saw the parsing algorithm. In this session, we will see the next LR parser, which is the SLR1 parser. We will see its parsing table specifically in this session. Why we will not see parsing algorithm here? Because all the LR parsers have the same parsing algorithm that we have seen in the LR0 parser. We'll only see the parsing table here, and we will see how to construct the SLR1 parsing table in this session in detail. Alright, let's see. So again, let us see where we are right now in the course. We have already completed all the top-down parsers, and we have also completed in the bottom-up parsers, we have completed operator precedence parser, and among LR parsers, we have completed LR0 parser. We are now starting with SLR1 parser. Again, let's see a bit about the terminology. Why LR0 is known as LR0, why SLR1 is known as SLR1, what is the full form of LR0 and SLR1? That is basically we are specifically telling. LR0 stands for left to right, and this is rightmost derivation in reverse. We have already seen this in the previous sessions. Rightmost derivation in reverse. Alright, this we have already seen. Okay? Now what is this 0? This is look ahead. This is 0 in the case of LR0 parser. This is 1 in the case of SLR1 parser. We will understand this when we specifically discuss SLR1 parser. You will understand this point in a better way. Just wait for some time. SLR1, when I say 1 is your look ahead, we'll understand why it is 0 over here and 1 in the case of LR0 parser. We'll understand that point. Now this S stands for simple. L and R means the same. L stands for left to right, and R stands for rightmost derivation in reverse. Okay? Simple hai. Now why it is 1 and why it is 0, we'll understand it in a while as we go ahead in this session. ठीक बात है. Now again ये भी चीज हमने बहुत स्पेसिफिकली देखी पिछले सेशन में. एक होता है रिडक्शन. जब रिडक्शन होता है तो हमारा होता है पॉप, और जब शिफ्टिंग होती है तो हमारा होता है पुश. और इसीलिए हम बॉटम अप पार्सर्स को पुश पॉप पार्सर्स या फिर शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए हम उन्हें शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स भी बोलते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद SLR1 पार्सर इन डिटेल. अगेन वही सवाल कि किस तरह के सवाल गेट में पूछे जा सकते हैं, हम आएंगे उस चीज पे. उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार पार्सर को देख लें. अगेन वही चीजें हैं, सेम इनपुट बफर होगा मेरे पास, स्टैक होगा, पार्सिंग एल्गोरिथम दोनों को देखेगा. दोनों को देखने के बाद में वो पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करेगा, और इस बार हम कंस्ट्रक्ट करेंगे SLR1 पार्सिंग टेबल. अगर ये मेरे पास टेबल है तब मैं क्या करूंगा, पार्सिंग एल्गोरिथम इसको कंसल्ट करके एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा. एक्शन लेने का तरीका बिल्कुल सेम है LR0 और SLR1 का. तो ये हम यहां पर अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इसकी पार्सिंग टेबल. The same thing also we will do for CLR1 parser as well as LLR1 parser. उनका पार्सिंग टेबल के कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी को हम समझेंगे. बाकी सारी चीजें हमारे पास में एकदम सेम रहेंगी. There is no change. All right. किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस. क्या मेरी गिवन ग्रामर SLR1 है कि नहीं है? क्या are there any missing entries in the parsing table and reachable configurations of stack during parsing? This part is already covered क्योंकि parsing algorithm same है. हमें ये दोनों पार्ट्स करने हैं. SLR1 कब होगी मेरी ग्रामर? पहला क्वेश्चन, जब नॉन एम्बिगुअस ग्रामर होगी या अनएम्बिगुअस ग्रामर होगी तब होगी. साथ ही साथ में SLR1 पार्सिंग टेबल में नो कन्फ्लिक्ट. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही मेंशन किया है. अगर नो एम्बिग्यूटी इन द ग्रामर एंड नो कन्फ्लिक्ट इन द SLR1 पार्सिंग टेबल. अब अगर ये कन्फ्लिक्ट चेक करना है तो हमें पार्सिंग टेबल बनानी आनी चाहिए, तभी तो हम करेंगे कंसीडर कि क्या भाई कन्फ्लिक्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है. तो पहले हम मेथड देखते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि पर कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी क्या है. ठीक है, और फाइनली हम ये देखेंगे LR0 और SLR1 में कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा सेट ऑफ ग्रामर्स को एक्सेप्ट कर सकता है. दैट वी विल सी. ठीक है, ओके.
अगेन स्टेप्स हमारे वही रहेंगे जो पहले थे, सिर्फ एक माइनर सा चेंज है. यू नो, इफ यू हैव अटेंडेड द LR0 पार्सर इन डिटेल, द पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन लेक्चर इन डिटेल, तब आपको इस लेक्चर को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. यू कैन फिनिश दिस लेक्चर विद इन इन कपल ऑफ मिनट्स. ठीक है, कैसे करना है? इन फ्यू मिनट्स आई शुड से. पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए LR0 आइटम्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डॉट होता है LR0 आइटम्स के अंदर. डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट बताता है आपने कितना पार्ट देख लिया है, राइट हैंड साइड पे डॉट लगा होता है. और साथ ही साथ में हमें क्या पता होना चाहिए, कैनोनिकल क्लोजर क्या होता है. कैनोनिकल क्लोजर निकालने के अंदर हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कुछ भी नहीं करना है, आपके पास में डॉट के बाद जो भी सिंबल है आप उसे एक्सपैंड करेंगे. नॉन टर्मिनल जो भी है, जब तक नॉन टर्मिनल्स आते हैं तब तक आप एक्सपेंशंस को लिखते चले जाएंगे. और फाइनली जब आता है हमारे पास कैनोनिकल कलेक्शन, ग्रामर जो है मेरे पास में ये था, इसमें 3 प्रोडक्शंस थे, 1, 2 एंड 3. अब आपने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड कर दिया, S' goes to S. ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने ऐड कर दिया है. तो टोटल हमारे पास में 4 प्रोडक्शंस हैं, हो गए हैं. अब पहले 3 थे. एक ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए हमने इसमें एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन डाल दिया. रीजन हमने बिल्कुल स्पेसिफिकली डिस्कस किया था. हम कैसे बताएंगे कि क्या हमने एस को भी देख लिया है, उसके लिए हमें एस के बाद में डॉट लगाना पड़ेगा. इसके अंदर हम नहीं लगा सकते क्योंकि डॉट हमेशा राइट हैंड साइड पे लगता है, तो इसलिए हमने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को डाल दिया. ठीक है, ये सारा डिस्कशन सेम रहता है. कैनोनिकल कलेक्शन कैसे बनेगा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रेफर टू द लेक्चर, गो 2 lectures before, look at the LR0 parsing table construction methodology. There I have discussed how to make this canonical collection. Exactly same है, कोई confusion नहीं होना चाहिए यहां पे. ठीक है, चेंज कहां आएगा पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन में, आइए देखते हैं. ये यहां चेंज आएगा. इस पार्सिंग टेबल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, दिस इज वेयर द एक्चुअल चेंज विल कम. हमारे पास में ग्रामर दी गई है, हमारे पास में कैनोनिकल कलेक्शन दी गई है. अब हमें इससे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हम इससे कंस्ट्रक्ट करेंगे फाइनली पार्सिंग टेबल. अगेन जैसे हम पहले करते आए हैं अभी तक के लेक्चर्स में, हम एक बार में सीधा टेबल नहीं बनाएंगे, ना ही हम एक बार में कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साथ साथ एल्गोरिथम देखेंगे, साथ साथ कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी देखेंगे और साथ साथ इस टेबल को भरते चले जाएंगे. ठीक है, एंड इट शुड बी अ केक वॉक फॉर यू नाउ, क्योंकि आप ऑलरेडी LR0 पार्सिंग टेबल देख चुके हैं. सिर्फ एक माइनर सा चेंज है एंड द थिंग्स आर डन. ठीक है, आइए देखते हैं, फटाफट से कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको. दिस इज द मेथोडोलॉजी. मेक अ टेबल विद n rows and mod of t plus 1, mod of t plus mod of v plus 1 columns where n is the number of states in the canonical collection. ठीक है, तो वही किया है मैंने, वही किया है. अगर आप देखें तो i0 से i6 तक मेरे पास स्टेट्स हैं, i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, n रोज हो गए, राइट. एंड देन इफ आई सी द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टर्मिनल्स ab plus 1 दैट इज $+ v दैट इज द नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स. आपने इस तरह से टेबल बना दिया. पहले भी ऐसे बनाया था, कोई चेंज नहीं है. जब चेंज आएगा मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा. ठीक है, नाउ नंबर द प्रोडक्शंस. ठीक है, जैसे हमने पहले नंबर किए थे प्रोडक्शंस को, वैसे ही नंबर कर देंगे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. इसको नंबर नहीं करेंगे. ये क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन. क्यों नंबर करेंगे हम इसको, बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टर्मिनल्स, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है भाई, उसको क्यों नंबर देंगे हम. टर्मिनल्स फ्रॉम द एक्शन पार्ट. टर्मिनल्स क्या बन जाएंगे, मेरे एक्शन पार्ट बनाएंगे. नॉन टर्मिनल्स मेरा गो टू पार्ट बनाएंगे. कोई चेंज नहीं है स्टेप में भी. ये हो गए मेरे एक्शन पार्ट, ये हो गया मेरा गो टू पार्ट. यहां तक एक्शन पार्ट है, इंक्लूडिंग द डॉलर. दिस इज माय गो टू पार्ट. कोई चेंज नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एक्शंस मेरे 2 तरह के होते हैं, या तो शिफ्ट एक्शन होते हैं या रिड्यूस एक्शंस होते हैं. 2 ही हैं, सिंपल से एक्शन है. शिफ्ट कर लो या तो रिड्यूस कर लो, सेम चेंज है, सेम चीज है, कोई चेंज नहीं है. अच्छा, यहां तक भी कोई चेंज नहीं है. जो शिफ्ट एक्शंस हैं और गो टू एक्शंस हैं वो एग्जैक्टली सेम है. सिर्फ चेंज आएगा तो रिडक्शन स्टेप्स में आएगा, हम डिस्कस करेंगे वो. लेकिन पहले इस बात को पढ़ लेते हैं, भर लेते हैं. अगर ix, iy अगर नॉन टर्मिनल्स पे हो रहा है, ix से iy नॉन टर्मिनल पे जाते हैं, तो आप pt ऑफ ix, नॉन टर्मिनल में y डाल देंगे, विच इज नथिंग बट योर गो टू एक्शन. सेम चीज है, तो जल्दी से भर देते हैं फटाफट से. नॉन टर्मिनल्स पे देखिए, i0 पे s आने पे i1 जाते हैं, यहां पर 1 लिख दिया. ठीक है, i0 पे a आने पे 2 जाते हैं तो 2 लिख दिया. नॉन टर्मिनल्स देखते जाएंगे फटाफट से. i2 से a जाएंगे
तो I5 पे जाएंगे, I2 से A जाने पे I5 पे जाएंगे, देन I2 से A पे जाएंगे तो I6 पे जाएंगे, I3 से A पे जाएंगे तो I6 पे जाएंगे. ऑलराइट, लेट मी क्रॉस चेक. I0 पे I0 on S goes to I1, I0 on A goes to I2, I2 on A goes to I5 and I3 on A goes to I6. परफेक्टली फाइन, सारा स्टेप कंप्लीट है. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे. IX और IY के बीच में अगर टर्मिनल है तो आप कौन सा स्टेप करते थे? शिफ्ट. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो वही कर देंगे हम फिर से. शिफ्ट स्टेप लिख देंगे, शिफ्ट टू स्टेट नंबर Y. तो लेट्स सी. I0 पे अगर A आया तो शिफ्ट टू 3, I0 पे अगर B आया तो शिफ्ट टू 4, I0 पे और वो कुछ नहीं आता है. अब आते हैं I2 पे. I2 पे A आया तो शिफ्ट टू 3, I2 पे अगर B आया तो शिफ्ट टू 4, शिफ्ट टू 3 एंड शिफ्ट टू 4. I3 पे अगर A आता है, I3 पे अगर A आया तो शिफ्ट टू 3 अगेन एंड B आया तो शिफ्ट टू 4 अगेन. सेम चीज कॉपी कर दिया. कोई फर्क है क्या पिछले स्टेप्स में और इस स्टेप में? कोई भी फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम टेबल बन रहा है क्योंकि ग्रामर सेम है. ठीक है, रिडक्शन स्टेप्स में चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा. ठीक है, यहां तक कहानी हमारी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इस पूरी कहानी के अंदर. अब हम आते हैं I4 पे. और कोई स्टेप रह गया है हमारा? सारे ट्रांजिशंस कवर हो चुके हैं. अब हमारा सिर्फ बचा तो क्या बचा? रिडक्शन स्टेप्स, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे. इफ RHS ऑफ ए प्रोडक्शन Px is completely seen in a state say IY. IY के अंदर आपने किसी प्रोडक्शन का RHS पूरा देख लिया है, then put RX for all the T's. इस बार जो T's हैं वो belonging to the follow of RHS of Px in PT of IY, पिछली बार क्या था? हम RX को रख रहे थे सारे टर्मिनल्स के अंदर. इस बार हम RX को रख रहे हैं फॉलो ऑफ LHS ऑफ PX के अंदर. और यही मेजर डिफरेंस है SLR1 पार्सर में और मेरे LR0 पार्सर में. ठीक है, मैं अब रिडक्शन स्टेप को सारे टर्मिनल्स के अंदर नहीं डाल दूंगा. मैं अब रिडक्शन स्टेप को कहां डालूंगा? फॉलो ऑफ द LHS ऑफ द प्रोडक्शन RX ऑफ द प्रोडक्शन PX. ठीक है, एक बार देखते हैं. अब अगर देखें हम यहां पर बात करें I4 की, I5 की बात करते हैं. I5 के अंदर रिडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन नंबर मेरा 1, तो मुझे R1 लिखना चाहिए. अगर ये LR0 पार्सर होता तो मैं R1 जो है यहां पे भी लिख देता, यहां पे भी लिख देता, यहां पे भी लिख देता. अब मैं कहां लिखूंगा इसको? कहां लिखूंगा? फॉलो ऑफ एस में. फॉलो ऑफ एस अगर मैं इस ग्रामर का निकालूं, अगेन फर्स्ट फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने जब फर्स्ट एंड फॉलो का लेक्चर डिस्कस किया था वहां पे बहुत क्लियरली बोला है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो, उसको अटेंड करिए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि I5 के ऊपर क्या हो रहा है. I5 में सिंपल से स्टेप्स हैं, जरा ध्यान सुनिए. I5 में S गोज टू AA डॉट हो रहा है, तो रिडक्शन करना है मुझे, R1 लिखना है. लेकिन R1 में कहां लिखूंगा? R1 में लिखूंगा सिर्फ फॉलो ऑफ S में. फॉलो ऑफ S अगर मैं निकालूं तो फॉलो ऑफ S इज नथिंग बट $, तो मैं सिर्फ R1 यहां पे लिखूंगा. पहले R1 में हर जगह लिख रहा था, यहां पर अब सिर्फ R1 यहीं पे आएगा. क्या मोटिवेशन है ये करने का? भाई आप रिडक्शन तब करें जब आपके फॉलो में वो सिंबल है जो होना चाहिए. हमेशा रिडक्शन नहीं करना है. तो इससे प्रिसाइजनेस बढ़ गई. प्रिसाइजनेस बढ़ने से क्या हो गया? पावर बढ़ गई. इसलिए SLR1 पार्सर ज्यादा पावरफुल है LR0 पार्सर से. फॉलो में वो सिंबल कहां दिखेगा आपको? इनपुट बफर पे दिखेगा. तो आप इनपुट बफर पे जब A और B आ रहा है तब रिडक्शन नहीं करेंगे, जब इनपुट बफर पे $, है तब ही रिडक्शन करेंगे, क्योंकि वो सिंबल पे आप रिडक्शन करिए जो फॉलो में है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन जो आपको वेरिएबल्स फॉलो करते हैं, जो टर्मिनल्स फॉलो करते हैं, सॉरी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन जो टर्मिनल्स आपको फॉलो करते हैं उसी पे तो आप रिडक्शन करेंगे. ऐसे थोड़ी ना किसी भी सिंबल पे रिडक्शन कर दें. तो पहले आप किसी भी सिंबल पे कर रहे थे तो एरर के चांसेस थे, ये और प्रिसाइज हो जाता है हमारे पास. बस यही एक मेजर चेंज है, उसी के बेसिस पे जो है हमने SLR1 पार्सर बनाया. ठीक है, और इसीलिए LR0 में जब हमने 0 लगाया तो हम फॉलो को नहीं देख रहे हैं, एक सिंबल आगे नहीं देख रहे हैं. SLR1 में हम एक सिंबल आगे देख रहे हैं कि क्या मेरा फॉलो है कि नहीं है. इसलिए हम इसको SLR1 बोलते हैं और इसको LR0 बोलते हैं. हम फॉलो को नहीं देख रहे हैं, एक सिंबल आगे नहीं देख रहे हैं इनपुट टर्मिनल पे. वो फॉलो दिखेगा कहां पे? इनपुट टर्मिनल पे तो दिखेगा. अगर मैं इनपुट टर्मिनल पे आगे एक सिंबल नहीं देख रहा हूं तो LR0 है, आगे एक सिंबल देख रहा हूं तब वो हो जाएगा SLR1.
वो मेरे फॉलो में होना चाहिए तभी मैं रिडक्शन करूंगा, उस नॉन टर्मिनल के फॉलो में होना चाहिए तभी रिडक्शन करूंगा। वो फॉलो दिखेगा कहां पे? इनपुट स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो अब बाकी की चीजें सेम रहेंगी। अब अगर देखते हैं I4 पे बात करें, I4 पे भी सेम रिडक्शन होगा, I3 का। तो I3 लिख लेना चाहिए मुझे, R3 लिखना चाहिए। पहले मैं कहां लिखता? हर जगह लिख देता, दैट इज यहां पे भी, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन अभी क्या होगा, मैं कहां भरूंगा? फॉलो ऑफ ए में। लेकिन फॉलो ऑफ ए अब हम निकालते हैं पहले तो। फॉलो ऑफ ए क्या है? फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस कंटेन्स डॉलर, आ गया। नाउ फॉलो ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए बिकॉज ऑफ दिस। सही है कि नहीं है? फॉलो ऑफ ए इज आल्सो इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए बिकॉज ऑफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। ये तो कोई नई बात नहीं है, पता ही है। फॉलो ऑफ ए के तो बराबर होगा ही ना। अब फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए क्या है? ए कॉमा बी ऑल्सो। तो डॉलर कॉमा ए कॉमा बी, तो इन सभी के अंदर मुझे R3 भर देना है। R3 है कि क्या है? I4 में, I4 में R3 है, तो यहां R3, यहां भी R3 और यहां पर भी R3 है। सिंपल है। I6 की बात करूं अगर मैं, I6 के अंदर अगर मैं चला जाता हूं तो I6 में मुझे क्या दिख रहा है? यहां पर रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन नंबर 2 का। प्रोडक्शन नंबर 2 में कहां डालूंगा एंट्री? फॉलो ऑफ ए में। फॉलो ऑफ ए ऑलरेडी मुझे पता है, R2 R2 R2। तो अगर हम उन दोनों, इस ग्रामर के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो सिर्फ यहां चेंज आया है। अब ये वाली जो एंट्रीज हैं एरर एंट्रीज बन जाती है। रेस्ट ऑफ द सेल्स में आप क्या भर देंगे? एरर एंट्रीज। सब कुछ सेम है, सिर्फ रिडक्शन स्टेप चेंज हो जाता है। उसी की वजह से मेरी जो है क्या हो जाती है? उसी की वजह से मेरी पावर बढ़ जाती है, मेरी प्रिसाइजनेस बढ़ने के कारण। बाकी सब एरर है। सिंपल है, ठीक है। If augmented production is completely seen in a state say IX, then PT of IX comma dollar is accept. This is the last step. इसमें हमारा क्या हो रहा है? PT of IX comma dollar, that is I1 comma dollar should be accept. This is a small error here. I should put here accept. This is over here. I should put accept. Simple है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? Accept लिख दिया। बाकी ऑल द रिमेनिंग एंट्रीज आर एरर एंट्रीज। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। सारा चेंज कहां आया? स्टेप नंबर 7। दिस इज द क्रक्स कि रिडक्शन में कहां करूंगा? रिडक्शन में सिर्फ वहां करूंगा जो LHS ऑफ द प्रोडक्शन के फॉलो में जो सिंबल्स आ रहे हैं वहां रिडक्शन करूंगा, रादर देन पुटिंग द रिडक्शन स्टेप अंडर ऑल द टर्मिनल्स। यहीं पर चेंज है, ठीक है। और इसी वजह से ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दो तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। Power of LR0 is less than equals to the power of SLR1 in any grammar. मान लो इक्वल क्यों लिखा? मान लो अगर फॉलो ऑफ एस में भी डॉलर ए और बी आ जाता तो फिर R2 वाला स्टेप भी सेम हो जाता। R2 वाला कि R1 वाला देख लेते हैं एक बार। तो फिर R1 वाला स्टेप भी सेम हो जाता। तो इसलिए इक्वल टू भी आ सकता है इन एनी ग्रामर, बट हमेशा इससे ज्यादा होगा या बराबर होगा। अब इसको पावरफुल ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? पहली बात तो एरर एंट्रीज बढ़ गई हैं। पहले यहां पर एरर एंट्रीज नहीं थी, यहां पर एरर एंट्रीज ज्यादा है, तो प्रिसाइजनेस बढ़ गई मेरी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये ज्यादा पावरफुल है। और मेरी ज्यादा ग्रामर्स SLR1 होंगी देन LR0। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? अगर यहां पर एरर एंट्री आ गई तो कंफ्लिक्ट के चांसेस कम है। कंफ्लिक्ट कहां पे आ सकता है? कंफ्लिक्ट वहां आएगा जहां पे ऑलरेडी एक एंट्री है, R1 की, R की एंट्री है, S की एंट्री है, वहां पर कंफ्लिक्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं। अब मेरे कंफ्लिक्ट के चांसेस कम हो गए क्योंकि यहां पर तो खाली सेल है। खाली सेल में कंफ्लिक्ट कैसे आएगा? अगर कोई भी एंट्री आ जाएगी तो कंफ्लिक्ट कब आएगी? जब ऑलरेडी सेल फिल्ड है, एक और एंट्री आप डालना चाहे। खाली सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कंफ्लिक्ट्स कम होंगे तो ज्यादा ग्रामर्स मेरी SLR1 होंगी। ज्यादा ग्रामर्स मेरी SLR1 होंगी तो मतलब ज्यादा लैंग्वेजेस मेरी SLR1 होंगी। ज्यादा लैंग्वेजेस अगर SLR1 होंगी तो पावरफुल कौन हुआ? SLR1 पार्सर। इनफैक्ट आई शुड से इन अ बेटर वे, SLR1 पार्सर जो है ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर पाएगा। यू नो, SLR1 ग्रामर्स ज्यादा होंगी, मतलब SLR1 पार्सर ज्यादा ग्रामर्स को एक्सेप्ट कर पाएगा, ज्यादा ग्रामर्स को जनरेट कर पाएगा, मतलब ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर पाएगा। ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर पाएगा तब मैं क्या बोल सकता हूं? वो पावरफुल ज्यादा हो गया। पावर की क्या डेफिनेशन थी? जो ज्यादा लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करे वो ज्यादा पावरफुल। बूस्टर ऑटोमेटा ज्यादा पावरफुल है, यू नो, फाइनाइट ऑटोमेटा से। फिर उससे ज्यादा पावरफुल मेरे को क्या मिल जाता है? यू नो, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उससे भी ज्यादा पावरफुल कौन हो जाता है? मेरा ट्यूरिंग मशीन्स। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो यही मेजर पॉइंट था कि यहां पर हमारे पास पावर्स जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, राइट।
तो हमने पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से देख लिया है, राइट। तो आप मिसिंग एंट्रीज को बहुत अच्छे से भर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था? कंफ्लिक्ट, मतलब क्या मेरी गिवन ग्रामर SLR 1 है कि नहीं है, उस चीज को हम कब कैसे कंसीडर करेंगे? क्या गिवन ग्रामर SLR 1 है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? एक तो पहले अनएम्बिगुअस हो और दूसरी बात SLR 1 पार्सिंग टेबल में कंफ्लिक्ट ना आए। सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। जब मैं LR0 की बात कर रहा था तब मैंने क्या बोला था? गो टू कंफ्लिक्ट तो कभी होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनोनिकल कलेक्शन। वहां पर हम एक सिंबल पे एक ही स्टेट पे जाते हैं, दो स्टेट्स पे नहीं जाते हैं। पार्शियल डिटर्मिनिज्म है। शिफ्ट कंफ्लिक्ट भी नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द पार्शियल डिटर्मिनिज्म। शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट आ सकता है या रिड्यूस आ सकता है। बस पहले ऐसा होता था LR0 पार्सर में शिफ्ट और रिड्यूस अगर दोनों एक ही स्टेट में होंगे तो पक्का कंफ्लिक्ट आएगा, और रिड्यूस भी अगर एक ही स्टेट में होंगे तो पक्का कंफ्लिक्ट आएगा, क्योंकि रिड्यूस एंट्री तो आप सारे सेल्स में भर देंगे, किसी एक में शिफ्ट रखेंगे, जिस एक में आप शिफ्ट रखेंगे वहां पर शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट हो गया। रिड्यूस के केस में एक एंट्री को रिडक्शन की आप हर सेल में जा रहे हो, दूसरी एंट्री को भी हर सेल में डाल रहे हैं, तो कंफ्लिक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन यहां पर कंफ्लिक्ट के चांसेस कम हो गए। कैसे हो गए? शिफ्ट एंट्री तो आप वहीं डालेंगे जहां पे होनी चाहिए, रिड्यूस एंट्री आप कहां डालेंगे? फॉलो ऑफ द LHS। तो अब आपको क्या इंश्योर करना है? जो आपकी शिफ्ट एंट्री है उसका इंटरसेक्शन जो है फॉलो ऑफ LHS के साथ फाई अगर है, तब तो आप बोल सकते हैं कि हां भाई शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट नहीं होगा। अगर इंटरसेक्शन आ जाता है, शिफ्ट एंट्री वाला सिंबल जो है, शिफ्ट एंट्री वाला टर्मिनल जो है, शिफ्ट एंट्री वाला टर्मिनल का इंटरसेक्शन अगर फॉलो ऑफ LHS ऑफ द प्रोडक्शन X जिसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आप उस केस में आप इसको फाई बोल देंगे। अदरवाइज अगर फाई है तब ये ग्रामर में कोई SR कंफ्लिक्ट नहीं होगा। RR कंफ्लिक्ट कब होगा? मान लो ये प्रोडक्शन RX है और ये RY थी, यहां पे RX बोल रहा हूं मैं, और शिफ्ट मान लो टर्मिनल और एनी टर्मिनल लेट से स्मॉल y, ठीक है। तो शिफ्ट एंट्री ऑफ द टर्मिनल y, इसका जो इंटरसेक्शन है फॉलो ऑफ LHS ऑफ RX PX के साथ फाई होना चाहिए। अब अगर मैं यहां बोल रहा हूं RX और RY है, इसका मतलब प्रोडक्शन X और प्रोडक्शन Y है, तो ये रिडक्शन अगर मुझे अपनी ग्रामर को SLR1 करना है तो मैं क्या बोलूंगा? फॉलो ऑफ LHS of X intersection follow of LHS of Y should be phi। अगर ऐसा है तब मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरी ग्रामर जो है वह SLR1 हो जाएगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां कॉन्फ्लिक्ट्स कम है क्योंकि कंडीशंस बढ़ गई। LR0 में तो क्लियरली बोल रहे थे कि एक शिफ्ट है और एक रिड्यूस है तो खत्म कहानी, और इसी तरह से दो रिड्यूस अगर हो जाए एक ही स्टेट में तो भी खत्म। लेकिन इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या फॉलो और शिफ्टिंग वाले चीज का फॉलो ऑफ LHS ऑफ RX ऑफ द PX इज हैविंग एनी इंटरसेक्शन विद द सिंबल Y, और यहां पर फॉलो ऑफ LHS ऑफ प्रोडक्शन PY एंड फॉलो ऑफ LHS ऑफ प्रोडक्शन X, ये अगर फाई है तब आपका कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है, ठीक है। एक बार देखने में ये चीजें कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, अगर आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। What we saw in this session is SLR1 were parsing table. We saw the parsing table construction methodology, and for that you will require LR0 items. You will need to understand canonical closure as well as canonical collection, and then you have a table which is having the number of rows is equals to the number of states in the canonical collection, and the number of columns is equals to the number of terminals plus non-terminals plus 1, which is for $. The non-terminals will form the action part, the terminals will form the the non-terminals will form the go-to part, the terminals will form the action part, which is including shift and reduce actions. When we compare LR0 parser with SLR1 parser, SLR1 parser is more powerful as the reduction steps becomes more confined, more number of error entries, that means more preciseness, more number of grammars will be SLR1, more number of languages will be accepted by SLR1 parser, therefore they are more powerful. That's all we saw in this session, guys, right? I'll see you guys in the next session with some details of CLR1 parser, right? We will see the CLR1 parsing table construction in the next session, all right? So that's all the details of the next few sessions. I'll see you guys in the next session with CLR1 parsing table. Thank you so much, guys.